Hello dear students, today particular solution of differential equation. Now say question number 3. For each of the following differential equations, find the particular solution satisfying the given condition. This means some conditions are given for each and every question. We have to find the value of constant term C and then we need to find particular solution of the given differential equation. Now see its first question. Here it is 3 into e to the power x multiplied by tan of y into dx plus 1 plus e to the power x into sec square y into dy equal to 0. When x equal to 0, then y equal to pi. Means these are the given values. Now see the solution of this question. Since 3 into e to the power x tan y into dx plus 1 plus e raised to x into sec square y into dy equal to 0. It is given differential equation. But it is not in proper form. Means we should collect the terms related to x with dx and the terms related to y with dy. So here we see that here extra term tan y and here extra term is 1 plus e to the power x. This means not needed with dx and not needed with dy. So dividing by tan y into 1 plus e raised to x on both sides we get. If we divide here 3 e raised to x tan y dx entire upon tan y into 1 plus e raised to x. So tan y going by tan y, we get here 3 into e raised to x upon 1 plus e raised to x into dx. And here if we divide by tan y into 1 plus e raised to x, means for this part, so we get here 1 plus e raised to x, 1 plus e raised to x gone. We get sec square y upon tan y, means this term sec square y upon tan y into dy equal to 0. So we get here after dividing tan y into 1 plus e raised to x on both sides, we get 3 into e raised to x upon 1 plus e raised to x into dx plus sec square y upon tan y into dy equal to 0. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने क्या किया उसी स्टेप में इंटीग्रल की साइन भी यूज कर दिया है. तो स्टूडेंट चाहे तो इसको वन मोर स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने यहाँ पर इंटीग्रल की साइन यहाँ पर अप्लाई कर दिया. सो इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स विच इज ऑफ द फॉर्म f dash x upon fx dx. Integral of f dash x upon fx dx. So here 3 is constant term, so taking 3 as it is, but integral of e raised to x upon 1 plus e raised to x into dx becomes log of mod of 1 plus e raised to x. चाहे तो यहाँ ब्रैकेट यूज करें या मॉडुलस यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y, तो ये भी सेम फॉर्मेट में है, मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी वाई डी एक्स फॉर्म में. क्योंकि देखो डी बाई डी वाई ऑफ tan y बिकम सेक स्क्वायर वाई, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर. जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा फॉर्मूला है, वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y. देखो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई. सो इट्स इंटीग्रल इज log ऑफ mod ऑफ tan y इक्वल टू log of c, where log c is constant. क्योंकि देखो c is constant of integration, so अगर log उसके साथ अटैच होता है तो log of c is a constant, whole quantity is a constant here. देखो log c हमें तभी यूज करना है when all the terms means remaining all the terms are present in logarithms. अगर सभी टर्म्स से जैसे कोई भी टर्म है और वो log से रिलेटेड है, लॉगरिथम टर्म्स वहां पर आया हुआ है, तो ही हम लोग कांस्टेंट को log ऑफ c लिखेंगे. अदरवाइज कांस्टेंट को log c हमेशा नहीं लिखना है. ये कंफर्म कर लीजिए कि c कांस्टेंट होता है. वैसे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं c, लेकिन ये दोनों टर्म हम देख रहे हैं कि log से रिलेटेड हैं, तो वी शुड राइट log ऑफ c. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू भी है यहाँ पर, तो n इंटू लॉग एम की जो फार्मूला है लॉग एम रेज टू n होता है। वैसे तो मैं चाहूँ यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, लेकिन मैं फार्मूला डिक्टेट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट अगर लिखेंगे तो उनको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ एवरीथिंग ईच जो भी है ईच एंड एवरीथिंग रेडीमेड हमें मिलना चाहिए। तो फार्मूला मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको अपने नोटबुक को उठा लो, पेन उठा लो और वहां पर लिखते जाओ। जब लिखोगे तो ही समझ में आएगा, और लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फार्मूला बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं फार्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिख करके नहीं दिया हूँ, ये रीजन है। फिर भी अगर स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें फार्मूला भी रिक्वायरमेंट है, लिख करके दीजिए, तो मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कमेंट। तो 3 इंटू, अब देखो 3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स, तो 3 गोज टू पावर हियर, ये पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब, यहाँ पर आ जाता है, ये जो 3 है इसके पावर में आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ टेन वाई। तो लॉग एम प्लस लॉग एन का जो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब इंटू टेन वाई, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो log ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू log ऑफ सेकंड क्वांटिटी, दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है। तो log ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब इंटू टेन ऑफ वाई इक्वल टू log सी, देन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब इंटू टेन वाई इक्वल टू सी। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया और ये सोल्यूशन आ गया, दिस इज सोल्यूशन, यस रियली इट इज सोल्यूशन, बट इट इज नॉट पर्टिकुलर सोल्यूशन। वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब जो इनके वैल्यूज गिवन थे, when x इक्वल टू जीरो देन y इक्वल टू पाई, मीन्स x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू पाई, ये हमें यूज करना है। तो अब उसको हम लोग कहां पर यूज करेंगे? इस इक्वेशन में यूज करेंगे, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 भी एज्यूम कर लिया है कि 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब इंटू टेन वाई इक्वल टू सी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अब क्या पुट करेंगे? देखो पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू पाई, जो हमारे वैल्यूज गिवन थे, तो पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू पाई, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू पाई इन इक्वेशन फर्स्ट, जो सबसे यहीं ऊपर ही है देखो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर जीरो होल क्यूब इंटू टेन पाई इक्वल टू सी। तो देखो 1 प्लस ई रेज टू जीरो बिकम्स 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 क्यूब बिकम्स 8, बट टेन पाई इज जीरो, तो 8 इंटू जीरो इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू जीरो, मीन्स जो हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। तो मेनली जब भी हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी and then substitute the value of c in the solution of differential equation, we get particular solution of differential equation। एक तरह से इसको रिवीजन भी मान सकते हो और एक तरह से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो दोनों काम हो रहा है साथ में। चलो कंटिन्यू आगे चलते हैं। पुट c इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1, मीन्स हमें यहाँ c की वैल्यू क्या रखनी है? जीरो, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आइए अब इसको यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन फिर कैसा दिखेगा। पुट c इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 1 plus e to the power x whole cube into tan of y equal to 0 is the particular solution of given differential equation। तो ये रहा हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को इफ कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियोज। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। अब जो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। अब ये क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, देखो ये ब्रैकेट में क्लोज्ड है, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। व्हेन x इक्वल टू टू देन y इक्वल टू जीरो, मीन्स x और y के वैल्यूज अगर गिवन है तो ये समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का मीनिंग ये होता है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c and then substitute the value of c in the solution of differential equation।
जो सोल्यूशन हमारा सॉल्व करके आएगा वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन बता देगा। नाउ सी द सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सिंस x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, we see that here x is common. Taking x out, x multiplied by 1 minus y square into dx minus here y common in this bracket, y common, तो y multiplied by 1 plus x square into dy equal to 0। भाई हमने क्यों कॉमन लिया, क्या जरूरत है कि क्या टेक्स्ट बुक में कॉमन करके क्वेश्चन को प्रिंट नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन स्टूडेंट की थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग भी देखनी है कि क्या स्टूडेंट यहाँ पर क्लियरली कॉमन कर सकते हैं या डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया। यहाँ पर हमने कर लिया इसको कॉमन। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमने बताया अभी कि dx के साथ ओनली x टर्म चाहिए और dy के साथ ओनली y के टर्म्स चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमें y माइनस वाई सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं चाहिए और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, इन्हीं दोनों टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, नोट डाउन, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो यहां पर लिख सकते हो। तो जैसे हम लोग यहां पर डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही दोनों ब्रैकेट में अलग अलग लिखना, ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर दैट वी गेट x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि देखो यहां पर x अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर गोइंग बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वी गेट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ये टर्म को भी सेम डिवाइड करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गोइंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट हो जाएंगे। तो वी गेट हियर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। या इन अदर वर्ड्स, ये देखो ये टर्म को इसका डिनोमिनेटर बना देते हैं और ये टर्म को इसका डिनोमिनेटर बना देते हैं, ये भी चलेगा। ऐसा शॉर्टकट तरीके से फटाफट अपना काम हो जाएगा और कुछ दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और अपना सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा। तो क्या करते हैं, चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसका डिनोमिनेटर बना दिया और 1 माइनस वाई स्क्वायर को इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 था, सेम रख दिया यहाँ पर, ये भी चलेगा। ये शॉर्टकट तरीका हो गया। अब ये जब सेपरेट हो गए, अब देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और यहाँ पर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गए, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म आने वाला है वो हम लोगों ने कर लिया। तो ये dx के साथ हाल x टर्म और dy के साथ हाल y टर्म्स। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर इंटीग्रल की साइन यूज कर देनी है कि देयरफॉर इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें समझाना है कि इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले चेक कर लो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, दोनों डिनोमिनेटर को चेक कर लो आसानी से। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, और हमारे पास x अवेलेबल है। तो अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2 कर देंगे तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका हो जाएगा माइनस 2y, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, तो माइनस 2y, माइनस साइन है ऑलरेडी, यहाँ भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जो टर्म को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई टू जो कर रहे हो वो तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में इंक्लूड हो गया, लेकिन जो डिवाइड कर रहे हैं जिस टर्म को, वो टर्म यहाँ पर है रिमेनिंग, तो वो टर्म को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखो हाफ यहाँ भी आउट है, हाफ यहाँ भी आउट है, तो ये 2 इंटू और यहाँ भी 2 इंटू। अगर मान लो स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मैं लिख भी सकता हूँ या खुद से नोट करो तो ज्यादा बेस्ट है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे अब चलने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज हाफ इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2y आ रहा था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मेट में है।
इक्वल टू log ऑफ C1। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट जो यूज किया है वो log ऑफ C1 यूज किया है, उसका रीजन मैं आगे बता रहा हूँ। देखो हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ log 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ C1। तो ये जो हाफ है दोनों में, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो हम लोगों ने हाफ को कॉमन कर लिया। अब हाफ कॉमन करने के बाद हाफ मल्टीप्लाइड बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ C1। टेकिंग 2 मीन्स 1/2 को हम लोग राइट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ C1। जैसे ही 2 यहां पर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, 2 log ऑफ C1 मीन्स अब ये n इंटू log m की फॉर्मूला भी तो बन जाएगी, log m रेज टू n। तो n इंटू log m रेज टू n, तो हो गया log C1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया log ऑफ C1 स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देयरफॉर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू log C1 स्क्वायर। तो C1 स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं C बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, तो इट विल बी log ऑफ C वेयर C इक्वल टू C1 स्क्वायर, ये लिख लेना है। ठीक है, नोट कर लो, वेयर C इक्वल टू C1 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया टर्म। अब इसके बाद हम लोग देखो log ऑफ दिस क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू log ऑफ सेकंड क्वांटिटी, तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो इक्वेशन आया हमारा C इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, solution of differential equation only, not particular solution। attention always, ऐसा नहीं कि हमारा सोल्यूशन आ गया और हम फ्री हो गए, चलो रिलैक्स, अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन बाकी है भाई, पर्टिकुलर सोल्यूशन करना है, तो भूलना नहीं है किसी स्टूडेंट को। सॉल्व इट, कंटिन्यू। अब ये चेक करो कि वैल्यूज जो गिवन है वो क्या है, x इज 2 एंड y इक्वल टू 0। तो चलो पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट यहीं पर है हमारे पास, देखो ये इक्वेशन है फर्स्ट। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4, और यहां पर इंटू 1 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 0 इक्वल टू C। तो ये क्या हो गया, देखो 5 इंटू 1 दैट इज C इक्वल टू 5। ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन जो था ये सॉल्व हो गया फर्स्ट वन, और इसके जो कांस्टेंट की वैल्यू थी वो वैल्यू आ गई 5। तो पुट C इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब C कहां पर है, ये है राइट साइड में, तो यहां से चेक कर सकते हो, यहां पर है C। पुट C इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 इज द पर्टिकुलर solution ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी अगर मैंने शॉर्टकट यूज किया है तो मैं उसको डिक्टेट भी करता हूं, और वो डिक्टेशन करने के बाद जो भी डिक्टेट कर दिया तो डिक्टेशन में नोट कर लेना चाहिए कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है DIFF डिफरेंस, यहाँ पर है डिफरेंशियल और EQ का इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभी हम लोग DIFF को डिफरेंशिएटिंग भी यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं वहां पर पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो जो टॉपिक चलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग वहां पर नोट करते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। अपनी प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि राइट फुल वर्ड्स इज द बेस्ट कंडीशन, क्योंकि अगर एग्जाम में सब जगह शॉर्टकट यूज करते हो तो कभी कभी एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर इसका मीनिंग स्टूडेंट को क्या समझ आया है, पता नहीं है। तो इसलिए एग्जाम में, मेनली बोर्ड एग्जाम में, फुल वर्ड्स यूज करो, फुल एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक, तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो हमें सिर्फ यहाँ पर 2 मार्क्स तक ही मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स या हाफ मार्क हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए मिल जाता है, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें हाफ मार्क और ऐड हो जाता है, और हमारा पूरा 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन समटाइम्स 3 में आता है, समटाइम्स 4 में भी आता है, तो स्टूडेंट को बहुत ही क्लियरली सॉल्व करना है, और अपना जो भी फुल मार्क्स रहेगा इसका फुल टू फुल मार्क्स उठा लेना है, फुल टू फुल मार्क्स लेना है, इसमें से 100% सोल्यूशन करेक्ट देना है, फुल मार्क्स ऑटोमेटिकली मिलेगा। डोंट थिंक अबाउट मार्क्स, थिंक अबाउट राइट सोल्यूशन फॉर एनी क्वेश्चन।
तो चलो एक बार मैं यहाँ वापस रिपीट कर देता हूँ कि देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये 3rd क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पर आया हुआ है, y मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। ये ध्यान देना, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ई। ये हमारे वैल्यूज गिवन है, y इक्वल टू ई स्क्वायर एंड x इक्वल टू ई। ऐसा नहीं कि देखो y इक्वल टू ई स्क्वायर, ई इज एन इरेशनल नंबर। ई क्या है? एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3 होती है, 2.7 समथिंग है। तो उसको चेक कर सकते हो अपने लॉग टेबल में जाकर के, या साइंटिफिक कैलसी में भी अगर यूज करते हो तो उसमें भी ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई जो है, ई इज एन इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू जो होती है 2.7 समथिंग है, और ये 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो y इक्वल टू ई स्क्वायर एंड x इक्वल टू ई, ये दोनों ही वैल्यूज हमें कब यूज करनी होती हैं? व्हेन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब तक हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक हमें ये वैल्यू यूज नहीं करनी है, और हम यूज कर भी नहीं सकते, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। सीधा सोल्यूशन, सिंस y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हमने नोट कर लिया गिवन इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखो 1 यहां पर हमें y नहीं चाहिए, ठीक है, y को इसका डिनोमिनेटर बना दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है बोलोगे तो चलो अभी हम बताते हैं कैसे आएगा। और यहाँ x इंटू लॉग एक्स है तो 1 अपॉन वाई करके यहाँ छोड़ दीजिए, x इंटू लॉग एक्स को इसका डिनोमिनेटर बना दिया, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म यूज कर लिया। तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये न्यूमरेटर इसका रह गया। और dy को यहाँ पर हम इसका न्यूमरेटर मीन्स dy को ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो dy अपॉन वाई हो गया। फिर से देख लो, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है। ये इक्वेशन को हम एडजस्ट करते हैं, मीन्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पर बार बार इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सीधी सी बात है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मीनिंग होता है कि एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं, एक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो dx के साथ होने चाहिए, और y से रिलेटेड जितने टर्म है वो dy के साथ होने चाहिए। प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लेना है, अरेंज करने के बाद यू आर फ्री फॉर इंटीग्रेशन। जैसे अरेंज करने का मीनिंग क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमने y को गलत तरीके से यहाँ पर इंटू वाई कर दिया, या इसको हमने न्यूमरेटर में ले लिया तो वो रॉन्ग वे हो जाएगा। करेक्ट फॉर्मेट में लेना है, जिससे अगर हम क्वेश्चन को यहाँ देखो, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वापस से तो हमें फिर से ये क्वेश्चन पे पहुंचा देगा यहाँ। तो अब हम करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इंटीग्रल का साइन भी इसी स्टेप में यूज कर लिया है। तो अब हम इसको रीड करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो ये स्टेप यूज करने के बाद अब हमारे पास जो टर्म्स है यहाँ पर, इनको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग एक्स बिकम्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके रफ पर प्रैक्टिस करके देखो, you विल गेट 1 प्लस लॉग एक्स। और यहां पर जो आने वाला है इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन वाई मीन्स 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। ये तो क्लियरली मालूम है, लॉग ऑफ वाई और कांस्टेंट, अगर ये दोनों यहां पर, तो इसका देखो जब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आया तो किस फॉर्मेट में हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्मेट में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है, एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला हमने यूज किया, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है तो लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रल करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रल निकालने के बाद हमारे सभी टर्म लॉग से रिलेटेड हैं तो हम कांस्टेंट को भी लॉग ऑफ सी लिखेंगे। अब यहां पर आता है कि लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, तो ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन।
तो देयरफॉर log ऑफ x into log x upon y equal to log of c. Log of x into log x upon y equal to log of c. Therefore x into log of x अपॉन y इक्वल टू सी। अब देखो log को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि log ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू log ऑफ सेकंड क्वांटिटी अगर गिवन है इक्वेशन ऐसा हमारे पास, तो हम लोग फर्स्ट इक्वल टू सेकंड लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी। ये फॉर्मेट हमने, जैसे भी log ऑफ a इक्वल टू log ऑफ b, तो a इक्वल टू b लिख सकते हो, तो ठीक वही फॉर्मेट यहाँ पर आता है। तो वी गेट x इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। अब आ गया यहाँ पर चांस y इक्वल टू ई स्क्वायर एंड x इक्वल टू ई के लिए। अब इनके वैल्यूज हमें यूज करने पड़ेंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन मिला x इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, पुट x इक्वल टू ई एंड y इक्वल टू ई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल टू ई एंड y इक्वल टू ई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो हमें क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। देखो x की वैल्यू है e, तो e इंटू लॉग ऑफ e एंड y इज e स्क्वायर, तो अपॉन e स्क्वायर इक्वल टू c। तो देखो log e की वैल्यू तो होती है 1, ये हो गया 1, e गोइंग बाई e वन टाइम, तो रिमेनिंग क्या होता है यहाँ पर 1 अपॉन e। तो दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू 1 अपॉन e। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है c इक्वल टू 1 अपॉन e मिल गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग c इक्वल टू 1 अपॉन e इन इक्वेशन फर्स्ट हियर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो देयरफॉर x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन वाई इक्वल्स 1 अपॉन e, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, y इंटू 1 दैट इज y, और ये e का मल्टीप्लाई x log x से कर देते हैं, तो e इंटू x इंटू log ऑफ x। तो y इक्वल टू e इंटू x इंटू log ऑफ x इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। अब आगे चलते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलते हैं, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही क्लियर वे से देखना है सबको। फोर्थ क्वेश्चन, e रेज टू y प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस e रेज टू y इंटू साइन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 when x इक्वल टू पाई अपॉन 6 एंड y इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंट करके आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन प्रिंटेड है। तो e रेज टू y प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस e रेज टू y इंटू साइन ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 when x इक्वल टू पाई बाई 6 y इक्वल टू 0 when y इक्वल टू 0 then x इक्वल टू पाई बाई 6। तो चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन का और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। See the solution. Since e raised to y plus 1 into cos of x plus e raised to y into sin of x dy upon dx equal to 0। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले dx को हम लोग यहां ट्रांसफर करेंगे, dx को, ठीक है। तो इक्वेशन सेम होगा, सिर्फ यहां पर dx नहीं दिखेगा, dx को यहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद dx के साथ हमें सिर्फ cos x, यहाँ मतलब x वाले टर्म चाहिए, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, e रेज टू y प्लस 1 को इसका डिनोमिनेटर बना देना है, जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया है, और sin x को इसका डिनोमिनेटर बना देना है। वी गेट हियर cos x अपॉन sin x इंटू डी एक्स प्लस e रेज टू y अपॉन e रेज टू y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। या दूसरा सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर देना चाहूँ, तो मैं जो सेंटेंस दूंगा स्टूडेंट को, वो सेंटेंस हमारा जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाई e रेज टू y प्लस 1 इंटू साइन एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो भी ये स्टेप क्लियरली दिखेगा। एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्मेट में है, और यहाँ भी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई प्लस 1 इज ई रेज टू वाई, तो यहाँ पर भी ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1 जो दिया है, ये भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्मेट में ही है, जो हमारा इंटीग्रेशन के लिए प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स।
Using that formula, we get here integral of cos x upon sin x into dx becomes log of sin x plus integral of e raised to I upon e raised to I plus 1 into dy is log of e raised to I plus 1 equal to log of c, where log c is a constant. c constant है तो log c भी constant ही हो जाएगा. अब यहाँ पर log m plus log n, ये हमारे फार्मूला है किसका, लॉगरिथम का. तो यूजिंग log m plus log n फार्मूला फॉर लॉगरिथम्स वी गेट log of sin x into e raised to y plus 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई और log वन टाइम इक्वल टू log of c. Now log and log eliminated on both sides, we get sin x into e raised to I plus 1 equal to c. Let it be equation first, and this equation is known as solution of differential equation. क्या बोलेंगे इसको, solution of differential equation. तो ये हमारा solution of differential equation तो आ गया, लेकिन ये पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है. इट्स नॉट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. वी नीड टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय गिविंग द वैल्यूज ऑफ x and y. Here values of x and y are x equal to pi upon 6 and y equal to 0. So we need to find the value of c. So we put the value of x pi by 6 and y equal to 0 in equation first. We get sin pi by 6 into e to the power 0 plus 1 equal to c. But sin pi by 6 means sin 30 degree is 1 by 2, and here e raised to 0 is 1, so 1 plus 1 becomes 2, that is half into 2 equal to c. So 2 going by 2, we get c equal to 1. Here constant term becomes 1. Put c equal to 1 in equation first. Here put c equal to 1, here we get sin x into e raised to y plus 1 equal to 1 is the particular solution of differential equation. Yeah, particular solution of given differential equation is the best sentence. तो ये तो हमारा रहा solution sin x equal to e raised to y plus 1 equal to 1 is the particular solution of given differential equation. But in the textual answer it is given that here root 2. This means if we put the value of x is pi by 4, जो भी स्टूडेंट अगर टेक्स्ट बुक के आंसर के अकॉर्डिंग अपना राइट सोल्यूशन मानते हैं तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर अपना राइट सोल्यूशन लेना है तो वो स्टूडेंट को यहां पर अपने सोल्यूशंस में चेंजेस करना पड़ेगा, अपने जो गिवन वैल्यूज है उनको चेंजेस करना पड़ेगा. यू विल गेट टेक्सटुअल सोल्यूशन. जो आंसर टेक्स्ट बुक में दी गई है वो आंसर को अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो पुट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4 and y equal to 0. If we put x equal to pi upon 4 and y equal to 0 in equation 1, we get here sin pi by 4 into e to the power 0 plus 1 equal to c. So sin pi by 4, that is sin 45 degree, becomes 1 upon root 2 into 2 equal to c. So 1 by root 2 into 2 becomes root 2 only. तो c becomes root 2. तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, if we put x equal to pi upon 4, then के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना. तो c equal to क्या हो जाएगा, root of 2. And then we put the value of c in equation 1 means root 2. We get sin x into e raised to I plus 1 equal to root of 2, which is textual answer. तो बस इतने ही चेंजेस करने. तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक के आंसर के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो उनको x की वैल्यू पाई बाय 4 रखनी पड़ेगी. तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्शन, ये भी नोट कर सकते हैं और इसके बाद फिर अपना अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1. अब देखो यहाँ पर e रेज टू माइनस वाई, ये नेगेटिव पावर दे दिया और वो भी एक्सपोनेंशियल में. और एक बात ये भी अलग है कि माइनस 1 यहाँ पर एक सेपरेट टर्म दे दिया जो कि किसी से अभी रिलेटेड नहीं है, वो न तो dy से रिलेटेड है न dx से रिलेटेड है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं सोल्यूशन में. सिंस x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, टेकिंग माइनस 1 ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट प्लस 1.
So this will be x plus 1 into dy upon dx equals 2 into e raised to minus y plus 1 and make e raised to minus y टू पॉजिटिव फॉर्म। इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन ई रेज टू वाई, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1। अब इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई, यहाँ तक पहुंच गए। देखो 2 इंटू ई रेज टू माइनस वाई प्लस 1, तो वी गेट हियर 2 अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर ई रेज टू माइनस वाई की मीनिंग जो है 1 अपॉन ई रेज टू वाई है, ये यहाँ पर आ गया 1 अपॉन ई रेज 2 अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे किया तो 2 प्लस ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई हो गया। अब यहां से और यहां पर देखना है, बीच के टर्म्स को देखने की जरूरत नहीं है। मीन्स x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2 प्लस ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये होल टर्म को, इसको हमें डी वाई के साथ चाहिए, तो इसको हम ले जाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल ई रेज टू वाई अपॉन 2 प्लस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई, और ये x प्लस 1 अपॉन डी एक्स को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन के हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये हो गया dx अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम लोग इसके बाद इसको क्या करेंगे, देखो ई रेज टू वाई अपॉन 2 प्लस ई रेज टू वाई इंटू डी वाई और dx अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये जो हमारा जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, x विथ dx एंड y विथ dy, ऑल टर्म्स ये हमारे कलेक्ट हो चुके हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। और ये भी देखो यहाँ पर एक बात और भी है, हम लोग इंटीग्रेट तो करते हैं कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल्स, मींस अगर x में है तो x के रिस्पेक्ट में और y में है तो y के रिस्पेक्ट में, एक ही इक्वेशन में हो जाता है। तो वी गेट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू y अपॉन 2 प्लस e रेज टू y इंटू dy। नाउ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 इज log of x प्लस 1, इट इज अ फॉर्मूला इक्वल टू, और यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मेट है, तो log ऑफ 2 प्लस ई रेज टू वाई, तो हम लोग कांस्टेंट को भी log के फॉर्म में ही लिखेंगे, प्लस log ऑफ c, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हमारा जो टर्म है log m प्लस log n यहाँ पर बन गया, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो log ऑफ 2 प्लस ई रेज टू वाई इंटू सी हो जाएगा। तो log ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ c इंटू 2 प्लस ई रेज टू वाई, therefore x plus 1 equals c into 2 plus e raised to y and let it be equation number first। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आता है, यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा जो है ये क्या है यहाँ पर, इज द सोल्यूशन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा जो है इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सोल्यूशन के थ्रू हम लोग अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो वी गेट हियर 1 प्लस 1 इक्वल टू c इंटू 2 प्लस e टू द पावर 0, बट e रेज टू 0 इज 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो 2 इक्वल टू c इंटू 3, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल्स 2 अपॉन 3। तो ये हमारी जो c की वैल्यू है ये कितना यहाँ पर मिल गई, 2 अपॉन 3। पुट c इक्वल टू 2 अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलता है, देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3, हमने c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस ई रेज टू वाई, देयरफॉर 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस ई रेज टू वाई is the particular solution of given differential equation। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पर इजिली आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस ई रेज टू वाई इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है उसको देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि दिस इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी दिया रहेगा एनी वैल्यू दे कैन गिव, तो जो भी दिया रहेगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सी मींस कांस्टेंट टर्म, वी रीसब्स्टिट्यूट हियर, वी गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन।
जो हमारा यहाँ पर है 3 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 इंटू टू प्लस ई रेज टू वाई। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, ये है cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आई, y ऑफ 0 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समझा दूं, यहाँ पर a इज एन इंटीजर और यहाँ पर y ऑफ 0 इक्वल टू 2 का मीनिंग होता है कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। ये ध्यान रखना है कि x is 0 and y equal to 2. Now see the solution of this interesting question. Very interesting question, or you can say this question is most important question. आइए आगे चलते हैं और इसका solution देखते हैं। Since cos of dy by dx equal to a, this is the given equation। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो dy by dx टर्म है वो cos का एंगल बन के आया है। तो हमें cos के एंगल के अंदर से dy by dx को बाहर खींच निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको बाहर खींच करके? कोई क्रेन थोड़ी लाएंगे यहाँ पर तो हमें अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से उसको खींच करके निकालना है। The cos of dy by dx equal to a, therefore dy upon dx becomes cos inverse a। क्या करेंगे? cos inverse a। हमने cos को यहां पर ट्रांसफर कर लिया तो ये हो गया cos inverse a। रीड एज cos inverse a। a is constant, a is an integer। तो therefore अब dx को भी राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो therefore dy इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx। अब यहां पर देखो a is constant, मतलब a is an integer, तो cos इनवर्स a is also integer। तो यहां पर cos इनवर्स a भी अगर integer है तो dy और dx और कोई तो यहां पर टर्म्स है ही नहीं क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे अब इसको? मीन्स हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रेडी हो गया, बस इतना ही। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट, और जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन दिखेगा कि इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। देखो ये था कांस्टेंट, तो इसको हमने पहले ही आउट कर दिया, आउट ऑफ इंटीग्रल कॉस इनवर्स ए इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। और इंटीग्रेशन में ये सभी स्टूडेंट को पता है कि इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज वाई equal to here cos inverse a as it is, integral of dx is x plus c, where c is constant of integration and let it be equation first। अब यहाँ देखो मैंने log c नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर log के टर्म्स नहीं है, इसके लिए यहाँ पर only c लिखा जाएगा। क्लियर? तो दिस इक्वेशन इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? पुट x इक्वल टू, देखो हमने इसकी मीनिंग पहले ही क्लियर कर दिया था कि y ऑफ 0 इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखने का फैसला कर लिया है। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहीं पर अवेलेबल है, और यहाँ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 रख कर देखते हैं कि c की वैल्यू क्या आती है। तो देयरफॉर here y is 2, that is 2 equal to cos inverse a, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इनटू x है, तो x की वैल्यू क्या है? 0 प्लस c। तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो ये है 2 इक्वल टू c हो जाएगा। तो देयरफॉर c इक्वल टू 2, तो हमें c की वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में 2 मिल गई। अब पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए फिर से इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, तो हमें यहीं पर c की वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देयरफॉर y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 2, या इसको x इंटू cos इनवर्स a भी लिख सकते हो। तो टेकिंग 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट y माइनस 2 इक्वल टू x इंटू cos इनवर्स a। y माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए। देखो हम लोगों ने कॉस इनवर्स ए को फोर्सफुली यहाँ पर बाय रूल, लेकिन ये घसीट करके इसको हम लोग इस साइड लाए थे राइट हैंड साइड में, तो फिर से उसको जहां पर था वो बेचारा उसको वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वहीं पर शिफ्ट करना अच्छा रहेगा उसको, तो इसलिए हम उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लस 2 को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किया तो हो गया y माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए। Taking x on the left hand side we get y minus 2
एंटायर अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। अब एक कॉस इनवर्स को हम लोग अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा इसका एंगल, जैसा कि यहां पर है। तो देयरफॉर कॉस ऑफ y माइनस टू अपॉन एक्स, अब देखो इनवर्स हट गया यहां से, तो cos of y minus 2 upon x equal to a is the particular solution of given differential equation। तो यह रहा हमारा 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सॉल्यूशंस यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए, अपलोड कर दिए समझो जस्ट अभी। और यहाँ पर सॉल्यूशन हमने पूरा दे दिया है। अब ये सभी सॉल्यूशन को स्टूडेंट को ऑनेस्टली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके बताना चाहिए कि उनको सॉल्यूशंस समझ में आया या नहीं आया, या अगर उनको सॉल्यूशंस में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, या इस टाइप का या अनदर कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।